কাৰ জৰিয়তে কি প্ৰভাৱ পৰিব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানলৈ এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ কাৰ জৰিয়তে কোনো সংখ্যালঘু লোকৰে নাগৰিকত্ব কৰ্তন নহয় বুলি এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ হে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো কাৰ জৰিয়তে কি প্ৰভাৱ পৰিব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানলৈ বৃহৎ ঘোষণা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কাৰ জৰিয়তে কোনো সংখ্যালঘু লোকৰে নাগৰিকত্ব কৰ্তন নহয় বুলি তেওঁ এতিয়া মন্তব্য কৰিছে নাগৰিকত্ব দিয়া আইন কা ৰাহুল গান্ধী ওৱেচিয়ে সংখ্যালঘুক মিছা কথা কৈছে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব দিব এইখন আইন যেটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কাক লৈ গৰজি উঠিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে কাৰ জৰিয়তে মুছলমানসকল বিপদত পৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে এই কথা কৈছে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ মন্তব্যক প্ৰত্যুত্তৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ কাৰ জৰিয়তে কি প্ৰভাৱ পৰিব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানলৈ ডাঙৰ খবৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ কাৰ জৰিয়তে কোনো সংখ্যালঘু লোকৰে নাগৰিকত্ব কৰ্তন নহয় বুলি তেওঁ কৈছে নাগৰিকত্ব দিয়া আইনহে হয় কা ৰাহুল গান্ধী ওৱেচিয়ে সংখ্যালঘুক মিছা কথা কৈ আছে শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব দিব এখন আইনে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব দি সন্মান দিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰি কৈছে কাক লৈ গৰজি উঠিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচি কাৰ জৰিয়তে মুছলমানসকল বিপদত পৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল ওৱেচিয়ে অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচি আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ মন্তব্যক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আৰু ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে কাৰ জৰিয়তে দেশত কি প্ৰভাৱ পৰিব কোটি কোটি মুছলমানৰ সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ মন্তব্য কৰি কৈছে কাৰ জৰিয়তে কোনো সংখ্যালঘু লোকৰে নাগৰিকত্ব কৰ্তন নহয় নাগৰিকত্ব দিয়া আইন হয় কা ৰাহুল গান্ধী ওৱেচিয়ে সংখ্যালঘুক মিছা কথা কৈ আছে বুলি ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব দিব এইখন আইনে কাক লৈ আচলতে যেহেতু গৰজি উঠিছিল আসাদুদ্দিন ওৱেচি আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ মন্তব্যক প্ৰত্যুত্তৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানলৈ এই বৃহৎ ঘোষণা কাৰ জৰিয়তে কি প্ৰভাৱ পৰিব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ ক'লে আৰু তাৰ লগতে আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে মন্তব্য দিছিলে অসমৰ মুছলমান বিপদত পৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছিলে দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ লৈ এটা ডাঙৰ মন্তব্য যি কৰিছিলে তাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে অমিত শাহে কি কৈছিলে শুনো আহক इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं माताओं को कहना चाहता हूं सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं सीएए नागरिकता देने का कानून है नागरिकता लेने का कानून नहीं है ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं माताओं को कहना चाहता हूं सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं सीएए नागरिकता देने का कानून है नागरिकता लेने का कानून नहीं है ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं माताओं को कहना चाहता हूं सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं
सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ইয়াছিলে মন্তব্য আপোনালোকে স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পাইছে। দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানলৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, কাৰ জৰিয়তে কি প্ৰভাৱ পৰিব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ, সেই সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। কাৰ জৰিয়তে কোনো সংখ্যালঘু লোকৰে নাগৰিকত্ব কৰ্তন নহয় বুলি তেওঁ কৈছে। নাগৰিকত্ব দিয়া আইন হৈছে কা। ৰাহুল গান্ধী ওৱেচিয়ে সংখ্যালঘুক মিছা কথা কৈছে। শৰণাৰ্থীসকলক নাগৰিকত্ব দিব এইখন আইনে, এনেদৰে এতিয়া মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ওৱেচিয়ে আচলতে কি কৈছিলে, কাক লৈ যিহেতু গৰজি উঠিছিলে আছাদুদ্দিন ওৱেচি, আৰু ওৱেচিয়ে আচলতে অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনিছিলে, মুছলমানসকল বিপদত পৰিব বুলি কৈছিলে। তেওঁ কি কৈছিলে সেই মন্তব্য এবাৰ শুনাব বিচাৰিছো। मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि सीएए कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है, उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए, नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? छठी, ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क से कश्मीर से बाहर है, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन, जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए,
जो इलीगल उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती हम नहीं लेकर आएंगे। CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा? जब CAB था, बाद में CAA हुआ, एक्ट हो गया। वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश मौजूदा আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে আৰু এই মন্তব্যকে এতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। কাৰ জৰিয়তে কি প্ৰভাৱ পৰিব দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ স্পষ্টকৈ ক'লে। দেশৰ কোটি কোটি মুছলমানলৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাৰ জৰিয়তে কোনো সংখ্যালঘু লোকৰে নাগৰিকত্ব কৰ্তন নহয় বুলি তেওঁ কৈছে। নাগৰিকত্ব দিয়া আইনহে হয় কাৰ। ৰাহুল গান্ধী ওৱেইছিয়ে সংখ্যালঘুক মিছা কথা কৈছে, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কাৰ জৰিয়তে মুছলমানসকলক বিপদত পৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছিলে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে, আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এই মন্তব্যক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।